Yes, dear students, today we will discuss about a new topic that is from atomic structure of 11th class. That topic is very important, that is dual behavior of matter. In this topic, we will discuss about de Broglie wavelength, derivation of de Broglie equation, difference between EM and matter wave, and last one, significance of de Broglie wavelength. So, before starting this topic, first of all, I would like to say you that it is not say like de Broglie. Generally, most of the students say de Broglie wavelength. No, it is not. Pronunciation is de Broglie wavelength. So always remember it should be de Broglie. Hence, till now we have discussed about the dual behavior of light. According to Einstein, light have dual nature, that is wave nature or particle nature. According to Einstein, when a light move and it will come contact and matter, then it will behave like a particle, and each particle is associated with h nu energy. Each particle is associated with energy that is equal to h nu, or h nu is given by quanta and photon energy. It means 1 h nu equal to quanta, 1 quanta और 1 photon. इसको आधार मानते हुए डी ब्रोगली ने क्या कहा कि एक मैटर पार्टिकल और वेव के रूप में बिहेव करना चाहिए. जब कोई लाइट पार्टिकल और वेव के रूप में बिहेव कर सकती है तो क्यों नहीं एक मैटर पार्टिकल और वेव के रूप में बिहेव करती. इसने सजेस्ट दिया ए मैटर कैन एग्जिस्ट in the form of wave and particle both. तो हम कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली ने अपना सजेशन दिया कि जिस प्रकार लाइट वेव और पार्टिकल के रूप में बिहेव करती है, इसका ठीक उल्टा कि मैटर भी क्या करना चाहिए, पार्टिकल और वेव के रूप में बिहेव करना चाहिए. ये उसने दिया. और उसने बताया कि मान लीजिए एक पार्टिकल जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि इसकी ए पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v और इसका मास है m. m क्या है, मास, और वेलोसिटी क्या है, v. तो उसकी जो वेव होगी, उस वेव का जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा. और इन्हीं तीनों के बीच उसने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, या जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन एम वी. अर्थात एक m मास वाला पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है, उसको जब वो वेव के रूप में बिहेव करेगा तो यह वेव बनाएगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, वेयर h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट. क्लियर? सो वी कैन से एन एटम हैविंग वेलोसिटी v and having mass v associated with in the form of wave, then its lambda is given by lambda equal to h upon mv. इसको रिलेशन को उसने एस्टेब्लिश किया. Now next point, that is derivation of de Broglie equation. Dear students, we know that according to Einstein, E equal to mc square, and according to Planck quantum theory, E equal to h nu. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. Compare both the equations. We compare. On comparing both
equation, then we find that mc square equal to h nu, and we know since c equal to lambda into nu, and we can write here nu equal to c by lambda. जब c by lambda ये वैल्यू यहाँ इसकी जगह रखें तो हमारे पास आता है सी एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. सी से आप सी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, और आपका यहाँ आ जाएगा लेमडा. इस लेमडा को यहाँ ले जाए, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी. हियर यहाँ सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी. So we can write here lambda equal to m h upon mc for wave. and अगर हम यहाँ पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था? v. तो यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को h upon m v, and we know that m v equal to p, that is momentum. So we can write here इसको lambda equal to h upon P. This is known as de Broglie equation. So इस प्रकार हम इसको derive कर सकते हैं. Next point is difference between matter wave and electromagnetic wave. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, विजिबल रेज, रेडियो, माइक्रोवेव, सारी की सारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. लेकिन यहाँ मैटर वेव के बारे में हमने नहीं पढ़ा. तो जब कोई पार्टिकल जिसका मास m हो और वो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो इसका जो भी वेव है बनेगा उसका वेवलेंथ है लैम्डा. और इस मैटर के कारण से जो वेव बनती है उसे कहते हैं मैटर वेव. फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं हम EM और यहाँ लिख देते हैं मैटर वेव. जब हम दोनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. बट मैटर वेव डू नॉट associated with such type of wave. सेकेंड केस अगर हम करें बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होती है? या जब कोई पार्टिकल, यानी कि हम कह सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में प्रेजेंट हो, वो या तो आउटर में जाए या इनर में जाए तो क्या करती है? या तो एमिट करता है, अगर आउटर में जाता है तो वो एब्जॉर्ब करता है, और बाहर अंदर की तरफ आता है तो वो एमिट करता है. तो हम ये कह सकते हैं दीज ऑलवेज शो द, क्या शो करता है? एब्जॉर्प्शन. कब? जब ये बाहर की तरफ जाएगा, मूव करेगा. एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन spectrum. But such type of matter do not show such types of spectrum. थर्ड पॉइंट, इसका अगर हम लाइट, इसका स्पीड देखें, या हम ये कह सकते हैं इसका स्पीड देखें तो वो हमेशा लाइट के इक्वल होता है. लाइट की स्पीड c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. In this case, different matter have different masses, so their speed of
speed cannot be given by the speed of light. This speed is different. So we can say it does not show the speed equal to light speed, या speed of equal to speed of light. क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें मास क्या होता है, मीटर में अलग अलग होता है. ठीक इसी प्रकार इसको फोर्थ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लेमडा की वैल्यू इसके लिए क्या लिखते हैं, h/mc, क्योंकि ये लाइट किसके इक्वल है, जबकि इसके लिए क्या लिखते हैं, लेमडा इक्वल टू h/m. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोई इक्वेशन. जनरली डी ब्रोई इक्वेशन को जब देखा गया कि व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, देन वी फाइंड दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्टिकल्स लाइक हाइड्रोजन एटम और सब पार्टिकल्स ऑफ द एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये तीन प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज होता है. चलिए अब देखते हैं क्या हो यदि हम ऐसा, सपोज एक एटम है जिसका मास है m और आप जानते हैं इसकी साइज क्या है, लार्ज है. तो डेफिनेटली जब m मास होगा तो हमारा उसका वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा. तो उस केस में जो भी वेव के रूप में बनेगी या वेव बनेगी उसका जो लेमडा होगा वो वेरी लेस. जब इस प्रकार जो वेवलेंथ होती है इसकी वेव की, तो उसको वेव बहुत ही नेग्लिजिबल मान लिया जाता है. उस केस में ये लेमडा इक्वल टू h/mc और mv लागू नहीं होता है. क्यों, m वैल्यू ज़्यादा, v वैल्यू ज़्यादा, देन v वैल्यू कम. तो वी कैन से जब मास ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, लेमडा वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है. इसलिए डी ब्रोई इक्वेशन हमेशा स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है. इसमें इतना ही. आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा सबसे पहले व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, सेकंड व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोई इक्वेशन, थर्ड वन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में डिफरेंस पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोई इक्वेशन. सो आई थिंक एंड आई होप you will be able to understand the topic in a better way. Thank you.